माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। Before we proceed with the proceedings, I appeal all the members to maintain the dignity of the House and allow smooth conduct of the business of listed today. The chair will ensure fair opportunity to all sides as per the rules and procedures. Today, as listed in the list of business and bulletin part 1, the House will take up the following items: general discussion on union budget for the year 2026-2027 as presented by Honorable Finance Minister, followed by the reply by the Honorable Finance Minister on this debate, followed by the legislative business and consideration and passing of the listed government bills. The general discussion on budget, which commenced on February 8, 2026 in the House of Digital Yuva Sansad, will continue today. Adequate time has been allocated to parties as per the agreed formula by everyone. Members are requested to speak within their allocated time and confine their observation to the budget, proposal, economic policies, and sectoral allocations, and their impact on growth, employment, welfare, and inclusive development. अभी मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय दूंगा अपनी अपनी बात इस सदन के सामने रखने के लिए। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। मैं आग्रह करता हूं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस चर्चा की शुरुआत करें। Finance Minister rise to present a budget that is not merely a fiscal document, but a testament to India's unwavering resolve in the face of unprecedented global challenges. While the world grapples with trade disruptions, geopolitical tensions, and economic uncertainty, India stands tall, stable, resilient, and growth oriented. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, we have maintained a stellar growth trajectory of around 7%, whilst navigating the most turbulent global waters. This budget is anchored in three sacred kartavya, three fundamental duties that shall propel Bharat towards its destiny as a developed nation by 2047. Our first kartavya is to accelerate and sustain economic growth through enhanced productivity and competitiveness. We are scaling up manufacturing across seven strategic sectors, from biopharma to semiconductors, from rare earth to textiles. Our public capital expenditure stands at a historic rupees 12.2 lakh crore, continuing our infrastructure revolution. Our second kartavya is to fulfill the aspirations of our youth and build their capacity through the high-powered education to employment committee, allied health professional training, and its orange economy initiatives. We are creating pathways for a demographic dividend to realize its full potential. Our third kartavya embodies our committed to Sabka Saath, Sabka Vikas, leaving no one behind. From increasing farmer incomes through fisheries and animal husbandry to empowering our Divyang brothers and sisters from supporting our Lakhpati Didis to developing the Purvadaya states, this budget reaches every corner of our nation. We have delivered on fiscal prudence with a deficit of 4.3% of GDP, whilst simultaneously reducing debt to GDP ratio 55.6%. This is not just a budget, it is India's Sankalp, our solemn resolve towards the Viksit Bharat. Dhanyavad and Jai Hind. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्यगण, अगर आपके कोई भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हो, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो, अगर आप लोग उन्हें संसद के नियमों के अनुसार, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो किताब है आप लोगों के पास, उसके अनुसार आप रेज करेंगे तो अप्रूव होगा, वरना नहीं होगा। धन्यवाद। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रिया शुक्ला। Yes, sir. Am I audible, Mr. Kanchati? Am I audible? yes. सर, आज मैं इस बजट को सिर्फ नंबर्स का डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि इस सरकार की नीयत का रिपोर्ट कार्ड मानती हूँ।
मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट को विजनरी, इंक्लूसिव और अमृतकाल का बुलेट ट्रेन बोला कहा है। बट अगर विजन इतना ही क्लियर होता तो आज किसान सड़क पर ना होता, युवा एग्जाम का रिजल्ट और एम्प्लॉयमेंट का इंतजार ना कर रहा होता। हर साल एक ही कहानी सुनाई जाती है, ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, एम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग। मेरा सिर्फ एक सवाल है, ये कैसी ग्रोथ है, ये या किसकी ग्रोथ है? सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जब से लॉन्च हुआ है, फिर उसके बाद से फैक्चुअल सेटबैक्स देखने को मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी, बट वी सी दैट द जो फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है उसमें 5.6 जो था मतलब नंबर 2009 से 2014 के बीच में, वो घट के 3.1 हो चुका है इन रिसेंट ईयर्स। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था जीडीपी जो है 25% ऑफ द जीडीपी होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बाय ये 2047। बट आज की डेट में 20 भी नहीं टच कर पा रहे हैं वो लोग, और घट के 15% हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन। The goal of the tax holiday was 2040 until 2047 for foreign cloud services provides aim to make India data hub. In reality, foreign tech giants get decades of tax-free operational, whereas domestic MSMEs only receive 10,000 crore. MSME growth fund जो सेक्टर 30% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में, उनके लिए कुछ नहीं है सर। सो जब हम बात लास्ट ईयर अराउंड 24% मीन्स अ क्वार्टर ऑफ द मनी, और पूरे बजट का 24%, अ क्वार्टर ऑफ द मनी was spent on taken on loan. The income tax and GST contribute to 36%, whereas corporate tax is 18%. ये दिखाता है कि biggest contributor of the revenue is common people, but उनके लिए कुछ है ही नहीं। Individual taxpayers are paying more in taxes than companies. सर पहले की गवर्नमेंट्स में कॉर्पोरेट टैक्स वाज मच हायर, और compared to the individual similar था। बट आज की सरकार में कंपनीज आर गेटिंग मोर रिलीफ, और प्रेशर आम आदमी के ऊपर है। सर डिफेंस की जब हम बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि फंड्स बढ़ेंगे, बट वी सी अ वेरी स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम 1.59 ट्रिलियन टू 1.63 ट्रिलियन। सर फंड का 50% जो है वो सैलरीज और पेंशन में चला जाता है, which leaves very little for modernization and technological advancement. आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, बट आज भी एक लार्ज पोर्शन ऑफ द बजट जो है 2.19 लाख करोड़ is not for new equipment. It is used for paying the installments and clear all the old delays. और 25-26 के बीच में जीडीपी का 1.9% वो स्पेंट ऑन डिफेंस, बट विच हैज ड्रॉप्ड डेकेड पहले 2.5 तक हम देखते थे। यस सर, डेकेड, यस यस सर, देखिए पहले हम देखते थे कि 2.59 मतलब 3% एटलीस्ट हमारा जीडीपी का डिफेंस में जाना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है सर। और सर हम जब बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन, सर हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 40% जो फंड है उनका लास्ट ईयर का वो यूज नहीं कर पाए। जल जीवन मिशन ने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका 75% फंड अनस्पेंट रह गया। सर ऐसे बोलते हैं कि स्कीम्स और प्लान है जो कंटिन्यूअसली फंड दिए जा रहे हैं, वो डिले देखने को मिल रहा है हमें। अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो था सर, उसमें इतना जो रियल कॉस्ट था उससे बढ़ के आज की डेट में 3 टाइम्स हो चुका है। तो गवर्नमेंट की साइड से फंड यूटिलाइजेशन में हमें इतना डिले देखने को मिलता है। Please conclude, Mananiya Sadasya. Please conclude. Only this point of orders will be accepted by the chair for this. Honorable Member Sanskriti, Honorable Member Noel Jude, Honorable Member Bharti Chadhan, and Honorable Member Pavani Arora. No more point of order will be involved in this round. Thank you. Honorable Member Noel, please. आप अपनी बात शॉर्ट में रखिए। धन्यवाद स्पीकर सर। हॉनरेबल एलओपी ने बात की थी कॉर्पोरेट टैक्स की, जो उन्होंने बताया था। मैं एक बात करना यहाँ पर चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स ड्यूरिंग दी उनकी गवर्नमेंट जब थी वो थी 30%, मोर देन 30% प्लस सरचार्जेस, और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G, सेक्शन 80 बहुत कम थे, रिबेट भी बहुत कम था। और अभी जो टैक्स रेट है कॉर्पोरेट के लिए वो है कट डाउन टू 22%, और आम आदमी के लिए 12 लाख तक सर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, वो रिबेट के अंडर एग्जेम्पशन पर आता है। अ सैलरीड पर्सन एग्जेम्पशन टिल 12,75,000, द टैक्सेस हैव बीन सिंप्लीफाइड, नो मोर बर्डन ऑन द कॉमन मैन। और कंपनीज के ऊपर भी बहुत सारे डिडक्शन है जो वो क्लेम कर सकते हैं। टैक्सेस आर सिंप्लीफाइड सर, टैक्सेस को बस समझने की जरूरत है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद माननीय सदस्य। प्लीज अगर आपको जवाब देना है तो शॉर्ट में सिर्फ
शॉर्ट में रखिए। हाँ सर, मेरा बस यही पॉइंट था। आई गेस सर आपने भले कॉर्पोरेट टैक्स की बात की हो कि 30% कॉन्ट्रीब्यूशन हो, बट आज की डेट में जब हम फाइनेंशियल्स में देखते हैं तो जब कॉमन पीपल का इंक्लूड करके कंबाइन करके जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को मिलाते हैं, तब जाके 36% उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और वेरा कॉर्पोरेट टैक्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, जो आप 30% कह रहे लग राउंड पेपर वटेवर, वो 18% है। तो सर इतना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि कॉमन पीपल आज की डेट में जब मतलब वर्ल्ड फैमिली रिपोर्ट कहती है कि 1% ऑफ द फंड, 1% शॉर्ट of the wealth is माननीय सदस्य, accumulated शॉर्ट में रखिए, with शॉर्ट ये। में रखिए, शॉर्ट। तो दिस इज द प्रूफ सर, ये दिखाता है कि वो 1% accumulation of wealth कहाँ जा रही है, कॉर्पोरेट में जा रही है सर। ओके माननीय सदस्य, नोएल आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय मिलेगा कंक्लूड करने के लिए अपना रिमार्क। प्लीज जल्दी 5 सेकंड में कंक्लूड करिए। ओके, थैंक यू सर। मैं एलओपी का ये जवाब देना चाहता हूँ कि टैक्स और स्पेंडिंग के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ। सी देखिए, अगर कॉमन मैन आप एग्जांपल लेंगे, जो भी उसको मिलता है डेली वेज वर्कर, वो स्पेंड कर देता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट उनको ज्यादा कुछ पता नहीं रहता, इसलिए वो स्पेंड कर देते हैं। जहां तक अगर आप एक रिच आदमी को देखते हो, वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के लिए जाएगा, इन्वेस्ट करेगा और अपनी जो अर्निंग्स है वो डबल करेगा। जहां तक मिडिल क्लास पर्सन, वो सेविंग्स जहां पर धन्यवाद इंटरेस्ट कम माननीय रहता है वहां पर मंत्री इन्वेस्ट। जी, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। थैंक यू सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स, माननीय सदस्य भारती जाडल। थैंक यू स्पीकर सर। सर, अपोजिशन रिया शुक्ला जी ने कहा कि एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर रहा है 30%। जो बजट आया 2026 और 7 का, एमएसएमई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और जो प्रॉपर बजट 2026-7 में डिफाइन किया गया है, 40% जो है वो एक्सपोर्ट होगा। और 3 अप्रोच भी रखी गई हैं एमएसएमई ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए। इसलिए मैं बता दूं कौन कौन सी अप्रोच है। इक्विटी सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू TREDS, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग। और तीसरा जो सपोर्ट है वो प्रोफेशनल सपोर्ट है। तो ये बजट 2026 और 7 में एमएसएमई को बहुत अच्छे से ध्यान करके ये बजट बनाया गया है, ताकि वो सेक्टर ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए, बिकॉज वो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। और प्रॉपर डिफाइन किया गया है कि माइक्रो मतलब इन्वेस्टमेंट और जो टर्नओवर होगा, शॉर्ट में प्रॉपर रखिए माइक्रो अपनी बात, स्मॉल मीडियम शॉर्ट में रखिए, पूरा एमएसएमई। शॉर्ट में रखिए। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। माननीय सदस्य संस्कृति, पॉइंट ऑफ ऑर्डर था आपका। जी, थैंक यू सो मच सर। सर, जैसा कि सवाल विपक्ष दल ने जो उठाया, कुछ आंसर्स तो मेरे बाकी साथियों ने दे दिया है। तो एमएसएमईज़ की ही बात की गई, तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि एमएसएमईज़ के ऊपर कितना बजट ऑलरेडी एलोकेट हुआ है और कितना कंट्रीब्यूशन, इक्विटी, लिक्विडिटी वगैरह के बारे में बात कर दी गई है। तो उसी पे मैं बताऊँगी कि एमएसएमईज़ का पे जितना भी अभी तक का सरकार की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसी के तहत एमएसएमईज़ के एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़े गए हैं। जैसे कि 2020 से लेकर 21 में 3.95 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट था। और वो आज के टाइम पे, क्योंकि इतने इनिशिएटिव्स लेने के बाद 24 टू 25 12.39 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट एमएसएमईज कर दी है, क्योंकि हमने उनको सपोर्ट किया है। एमएसएमईज ने सिर्फ केवल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात हो रही है, केवल गवर्नमेंट जॉब्स या जॉब वैकेंसीज ही एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करती है। इन एमएसएमईज ने उद्यम पोर्टल पे इट इज मेंशन कि 25.18 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं इन एमएसएमईज में, बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट इज गवर्नमेंट टेकन। एंड that's why India right now is considered as world's largest cultivator of cotton, largest producer of jute, second largest producer of silk and cotton। और इसी वजह से इस बजट में समर्थ 2.0 के तहत टेक्सटाइल वैल्यू चेन्स पे भी एक्सपेंडिचर किया गया है, ताकि उनको और प्रमोट किया जाए। सेकंड, बस एक लास्ट बात बताना चाहूंगी, जैसे कि रिया शुक्ला जी, सॉरी, विपक्ष दल जी ने ये बात कही कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, फिजिकल डेफिसिट की बात, तो ये थोड़ा गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बिकॉज डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इंडिया का अभी के समय पे 81.84% है, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन इससे ये नैरेटिव मत सेट करिए कि बिल्कुल इंडिया कोलैप्स होने वाला है, इंडिया की इकोनॉमी। बिकॉज अब बाहर जाके दूसरे देशों का देखेंगे तो जापान का 250% है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, यूएसए का 120% है, यूके फ्रांस का 100% है, चाइना का तो 300% है। फिर भी इनकी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हुई है, इकोनॉमी बहुत सस्टेनेबल मैनर में चल रही है। जी सर, लास्ट है बस। तो ये जो 81.8% का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे ही काम किया जा रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों पे ही काम किया जा रहा है। तो कृपा करके गलत नैरेटिव ना सेट करें। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय सदस्य। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य निवेदिता कुमारी अपनी बात सदन के सामने रखें। थैंक यू सर। हाँ, माननीय सदस्य पवानी, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए, फिर आपको मौका दे देंगे, ठीक है जी। ओके, माननीय सदस्य प्लीज कंटिन्यू। निवेदिता कुमारी। Okay.
Honorable Speaker, okay, sir, thank you. Honorable Speaker, sir, I rise today to strongly support the Union Budget 2026-2027. This budget reflects Viksit Bharat balancing ambition with inclusion, action over ambivalence, reform over rhetoric, people over populism. This budget is about nation building. It focuses on inclusive growth by giving priority to women, youth, and corporate sector. Union Budget 2026-27 government uh, to set up corporate mitras platform professional bodies like ICI, ICSI, ICMAI will help create a trained group of para professionals, especially in tier 1 cities, to tackle the compliances need of SMEs. Speaker, sir, this budget is not a pro-rich or anti-poor. It is pro-productive India. For taxpayer, there is a tax simplification, rationalized slabs, and faster refunds. Ease of doing business lead to ease of living. Reduced compliance, burden of digital clearance means less corruption, faster execution. Through clarity and rationalization in capital gains and security transfer taxes, the government has set clear message: long-term discipline investment will respected and protected. So I urge this House to support the Union Budget 2026-7. Thank you. धन्यवाद माननीय सदस्य निवेदिता। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य पवानी अरोरा, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर था जो कि रिकॉग्नाइज हो चुका है, तो आप अपनी बात रख सकते थैंक यू सो मच ऑनरेबल स्पीकर सर। जैसे रिया शुक्ला जी ने बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ है, मानते हैं हम ये बात, पर अब ऐसा नहीं है कि बस साधन जॉब्स ही हैं, कंटेंट क्रिएशन लैब्स भी हैं, ये सारी लैब्स हैं। और हमने 15,000 सेकेंडरी स्कूल में और 500 कॉलेजेस में सपोर्ट क्रिएटिविटी एंड टेक स्किल्स के बारे में भी बात करी है, जिसके अंदर हम अपने स्किल्स डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में टोटल 9,885 करोड़ हम इसमें बजट में यूज हो रहा है। और आप लोगों ने 2013 में एंड 14 में ओनली 16.6 लाख करोड़ ही यूज किए हैं। तो ये मेरा सवाल रिया शुक्ला जी पे है कि आप ये कैसे बोल रहे हैं कि हम कुछ इस पे काम नहीं करना चाह रहे। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो ओके, क्योंकि आपने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया तो उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष। सर, अभी बहुत सारे मेंबर्स ने एआई को स्कूल में लेके आने का या फिर जो लाइक ऑरेंज मतलब इकोनॉमी है उसके बारे में बूस्ट करने के बारे में बात किया। बट सर मेरा ये क्वेश्चन इन लोगों से ये वो है कि जब आपका फाउंडेशन ही वीक है तो आप इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी कर पाएंगे? आज के स्कूल में टीचिंग फैकल्टी की कमी है। कॉलेजेस में मतलब बेसिक जो आज की डेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इंप्लीमेंट की जा रही है उसमें भी आपने ऐसे बहुत सारे न्यू मतलब करिकुलम ऐड ऑन किए थे, बट वो आज की डेट में इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो आप कैसे ये चीज एश्योर कर सकते हैं कि जो स्कूल आज मिड डे मील नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है सही से, जो स्कूल की दीवारें टपक रही हैं, वॉशरूम क्लीन नहीं है, वो कैसे एआई और मतलब ये सब सिखा पाएगा? और साथ ही साथ मैं एक डाटा कोट करना चाहूंगी लास्ट कुछ ओके, माननीय 2014 में प्लीज कंटिन्यू। यस सर। ओके, आपको ओके, कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए आप अपना, माननीय सदस्य पवानी अरोरा। जी सर जैसे रिया शुक्ला जी ने कहा कि फाउंडेशन ही खराब है, तो आप मानते हैं कि फाउंडेशन आपकी वजह से है खराब, हमने आपकी बात मान ली, ठीक है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने हाँ, कहा फाउंडेशन तो आपने ही बनाया है, आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं फाउंडेशन वो, तो और आपने आप ही बनाया इमारत है ना, बनाना चाहते हो उसके ऊपर। फाउंडेशन तो आपने ही बनाया है। हम तो एआई, हम तो वैसे पूरे वर्ल्ड से लड़ाई करने में लगे हुए हैं कि हम और ज्यादा इंक्रीज करें, सारी चीजें हम करें, हम तो करने में लगे हुए हैं। अब जॉब्स मैटर नहीं है, अब इंस्टाग्राम है हमारे पास, कंटेंट क्रिएशन है, हम उसमें ज्यादा देखना चाहते हैं कि बच्चे उसमें ज्यादा अच्छे हो। हमारा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन चेंज हो रहा है, हम ये कोशिश ओके। कर रहे हैं, पर आपने ये बात मानी है। थैंक यू सर। या धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय सदस्य सौरव कुमार।
Yeah, so just to play some data here, thank you for giving me chance. Yeah, from you, I want to show some data to Miss Pavani Arora. I think she is the education minister. So here are something. So this year they have decided to spend 1.39 lakh crore amount to the education, which is like 2.6% budget share. So what happened in 2020? They said that they are gonna spend 6% of the GDP, like not us, the one who are in 2010, 9 and like before and all, they always say. So they said before 5 years that they are going to spend 6% of GDP share. It has been 5 years. Where is the data? And what are you spending? Leave that. 52% government Okay, primary schools we will have take up less the than answer. 60 Yeah. students. हम More जवाब of लेंगे that, सदस्य से. 25,000 school lack power connection. Like in 21st century, Okay, please in conclude. India, there are 25,000 स्कूल जिनमें लाइट नहीं आती है. 58% कंप्यूटर आर ओनली फंक्शनल. 100 कंप्यूटर किसी स्कूल में रखें, सिर्फ 58% Okay, चलते हैं. please एडिंग टू द conclude. डेटा कि सिर्फ Short में 63% रखिए. स्कूलों में ही. Yeah, please conclude. जस्ट सर आई एम कंक्लूडिंग एआई की बात करते हैं. इनके मिनिस्टर एआई को आई और माई कह के संबोधित करते हैं. आई नो हाउ मच द एआई एंड आई और माई दे अंडरस्टैंड. Coming more to that, 1.1 lakh school run by one teacher. Like in India, only one single teacher run 1.1 lakh. And what they do कि जनगणना करा लो, वोटिंग करा लो, ये काम करने के लिए टीचर्स को अक्वायर करते हैं. In last 5 years, not us, they have closed No, no, please conclude, please. 18,727 schools. Yeah, please. 93,000 closed in last 10 No, years. please conclude. National education policy said that they are going to spend 6%. They नहीं, spend only 2.6%. Okay, And आपको now मौका don't मिलेगा claim अपनी these बात two रखने names, के. sir. अभी Just give me conclude करिए. 30 seconds. Don't say these two names. No, Samagra Shiksha Abhiyan and please PM3 conclude. or आपको not मौका that मिलेगा new अपनी बात education रखने policy के. that you imposed. आपको I don't want the name of scheme. नहीं, Just आपको please मौका give me the मिलेगा data. Why are you आपको. closing the schools? आपको मौका मिलेगा. Saurav, enough data is there. Okay. आपको मौका सर मिलेगा. मैं जवाब देना चाहूंगी. प्लीज आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे जवाब अपना देने के लिए, सप्लीमेंट्री के लिए. प्लीज. सौरभ जी, मैं आपको एक बात, मैंने एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं की. मैंने पहले बात की थी, एक बार बोलने दीजिए. मैंने बात करी थी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पे, जैसे रिया शुक्ला जी. वैसे तो मैं MOS हूँ स्किल डेवलपमेंट पे, पर मैं स्कूल में इसलिए करा क्योंकि हमारा एक आया था कंटेंट बेस्ड, जो हमने AVI गेमिंग और बहुत सारी चीजें स्किल इंडिया के डेटा सुना दूं क्या? सर बोलने तो दीजिए आप हमें. कर स्किल लीजिए इंडिया कंप्लीट. में बात आप बिल्कुल चेंज करो. बात क्या थी और आप कहाँ पे जा रहे हो? चलो ले आप आइए, नई डेटा, स्कीम का नाम लाइएगा. नहीं, डेटा नहीं, प्लीज ये लाइए. तो हमारे maintain पास the नहीं decorum आता, of the हमें order. नहीं पता. ये डेटा मेरे नहीं, पास तो honorable नहीं members, आया. maintain the decorum कांग्रेस of की the order. हालत नहीं है कि में हम आप सदन ऐसे क्या ही नीचे. बोले, तो नहीं, जो हमारे आप. सामने आई है ना डेटा, हाँ, सर वो ये सारी डेटा तो कांग्रेस ने नहीं, नहीं, आप किसी 4.5% खर्च किया पॉलिटिकल था पार्टी का एजुकेशन नाम पे लीजिए. जीडीपी का. आपने आज तक नहीं किया है. आप किसी पॉलिटिकल 2009 हम and पार्टी का 10. नाम कर रहे हैं, हम वर्ल्ड के हिसाब से लड़ाई कर रहे हैं सर. सॉरी सर. धन्यवाद. धन्यवाद माननीय सर. 1 मिनट. धन्यवाद सर. मैं अनुरोध करता हूँ सभी माननीय सदस्य से कृपया भी किसी विशेष पार्टी का नाम लेने से बचे. मैं एक बार फिर सभी सदस्य को आगाह करना चाहूंगा. धन्यवाद. माननीय पूर्वा वरलीकर. Honorable Speaker, sir, having witnessed the presentation of the first budget, we are not merely dreaming of a global economic standing, we are constructing on a foundation of sustained growth and responsible 4.3 fiscal deficit target. This trajectory is powered by a historic 12.2 lakh crore investment in our nation's infrastructure, ensuring that our path to becoming one of the world's largest economy remains uninterrupted. I particularly want to highlight the proposals mean for everyday lives of our citizens. The Income Tax Act of 2025, designed for the recent budget, has designed the ease of living evidenced by the dramatic reduction of TCS on overseas education and travel from as high as 20% down a mere 2%. We are also making global goods more accessible by halving the duty on personal import. Our commitment to a healthy and security of the vulnerable is equally bold by removing duties of 17 essential cancer medicines and expanding
emergency trauma facilities in district hospitals. Furthermore, we are investing heavily for the next generation and our rural workforce. From the Biopharma Shakti mission, we are to the establishment of girls' hostels in every single district. We are systematically removing barriers for our youth and women, whether it is the She Marts empowering rural entrepreneurs and AI-driven Bharat Vistar supporting our farmers. This budget ensures that dividend of growth reach every corner of our society. This is definitive roadmap of self-reliant, inclusive, and truly Viksit Bharat. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय सदस्य। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स है तो नियमों के अनुसार अगर आप लोग रेस करेंगे तब रिकॉग्नाइज होंगे, ऐसे डायरेक्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हैंड रेस करके रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। तो अगर आप लोग नियम के साथ चलेंगे तो ठीक है। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य सुब्रमण्यम श्रीनिवासुला। माननीय सदस्य सुब्रमण्यम श्रीनिवासुला। सर या सर जी बोलिए। Thank you, Speaker, sir. Honorable Chairman ji, I rise today not to praise this Union Budget 2026, but to expose it. The government calls this a visionary budget, but I call it as a mirage, a glossy document outside, but hollow within. You speak of growth, but where is employment? You speak of reform, but where is the relief? You speak of empowerment, but where is the purchasing power? It is nothing but statistical gymnastics. Numbers are inflated, realities are deflated, farmers are promised, youth are pacified, MSMEs are pacified with a token of crumbs, and the middle class handed slogans instead of substance. Sir, I am recalling two Telugu proverbs regarding this situation. Eddu munde bandi kattinattu, which means trying cart before the bull, tying cart before the bull. That is exactly what this government announcing grants dreams without building the foundational jobs, income security, and social stability. And also another proverb: Maatalu maavidi totalu, chetalu chinta chetlu. Words are like mango orchards, but actions are like tamarind trees. Sweet in speech, sour is delivery. This budget is not transformational, it is theoretical, not inclusive but selective, not reformist but repetitive. Nation wants accountability, not advertisement. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय सदस्य। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिकॉग्नाइज माननीय सदस्य संस्कृति। थैंक यू सो मच स्पीकर सर। तो जैसा कि विपक्ष दल ने ये बात उठाई है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर, एमएसएमईज के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एमएसएमईज की बात पहले भी बता दी गई है, कितना कंट्रीब्यूशन एमएसएमईज का बढ़ चुका है सरकार के द्वारा काम करने पर। रही बात इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मिडिल क्लास लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर मैं ये देना चाहूंगी कि बजट आने से पहले ही ये बजट 4 पिलर के ऊपर आधारित था। हर देश का होता है, बजट आने से पहले ही कुछ अच्छे नंबर देने की जरूरत होती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ से जाए ना। तो 4 के तौर पर ये बात थी कि इस टाइम पे हमारे देश को कहा जाता है गोल्डीलॉक्स सिचुएशन में चल रहा है। आई होप इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज होगी। तो गोल्डीलॉक्स सिचुएशन का मतलब होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट या जीडीपी, ये एक स्टेबल रेट पे है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, बट ये एक स्टेबल रेट पे है अभी, ना ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना ये भी घटा है। जीडीपी, अब बात ये रही कि आज के टाइम पे आप देखिए ग्लोबल टेंशन कितने चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन कितने चल रहे हैं, टैरिफ वॉर की मार हमारा देश सह रहा है। जी सर, तो इस सिचुएशन में भी 7.8% पे जब हमारे देश की जीडीपी थी, जो टैरिफ वॉर्स के बाद सारी देश की जीडीपी गिरी है, बट इवन आफ्टर दैट हमारा देश 7% जीडीपी पे मेंटेन है बिकॉज ऑफ दीस रिफॉर्म्स। ओके, बाकी के जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स थे उनको एक बार सदन के सामने रख देते। माननीय सदस्य आयुष गुरंग और माननीय सदस्य सौरव कुमार, सिर्फ ये 2 पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिकॉग्नाइज होंगे इस समय। माननीय सदस्य आयुष, पहले आप बोलिए, फिर आप बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके द्वारा ये सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जैसे कि मतलब अभी हमारा मंत्री जी ने बोल दिया, संस्कृति जी ने, कि
जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए और उनको रखने के लिए देश में, इसीलिए डेटा प्रेजेंट करना होता है। जो हाई बजट्स होता है, जो स्कीम्स होता है, ये सब प्रेजेंट करना जरूरी है ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स भारत में आए और निवेश करें। और दूसरी बात मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभी पीएमओ से हटकर सभी मतलब मेंबर्स के पास है ऑपोजिशन के। इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, अभी अभी मेरे को पता चला कि ट्रस्ट मी ब्रो, तो इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मतलब इन लोग फैंसी मतलब कुछ भी मतलब उठा के इधर बोल देते हैं। सर आई स्ट्रांगली कंडेम दैट दे डू नॉट डू द प्रॉपर रिसर्च एंड जस्ट give their fancy speeches, so I strongly condemn this ओके, क्योंकि आपने thing. Thank क्योंकि you आपने so much, क्योंकि sir. आपने एक पार्टी विशेष का नाम लिया तो उनको भी बोलने का मौका देना पड़ेगा हमें। माननीय नेता प्रतिपक्ष। सर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर ये डाटा और मतलब उनकी उसकी तरफ पॉइंट आउट करे कि हम कोई ऑफिशियल डाटा नहीं, तो मेरे सभी मेंबर्स ने नीति आयोग जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट है, खुद मैंने सर ऑफिशियल वेबसाइट का ही डाटा कोड किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आप लोग डिनाई कर देंगे और मुझे पता है कि कौन सा डाटा यहाँ वैलिड माना जाएगा। तो प्लीज बिना वजह एलिगेशन ना लगाएं। और जहाँ तक रही बात रिटोरिक्स की, एआई वगैरह की, तो प्लीज ये ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहाँ से बोलना है कैसे बोलना है दैट्स ऑन देम, ठीक है। तो प्लीज गाइडलाइंस ना प्रोवाइड की जाए उनके थ्रू। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य सुब्रमण्यम श्रीनिवासुला। There was a point of order of mine. हाँ ओके, माननीय सदस्य सौरव कुमार, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, आप बोलिए। Thank you, Speaker, sir. So, as Miss Sanskriti said, that we have like GDP rate of 7.8%. So, just use the data to आप एक मिनट, analyze budget also. आप सबसे पहले कुर्सी पे एक जगह पे बैठ जाइए। आप संसद में, आप कुर्सी पे एक जगह बैठ जाइए प्लीज, और बोलिए। Like I take, okay, fine. So, as the Minister of Finance said that they are like increasing India's development at 7.8% of GDP. तो मैं उन्हें बस इतना बताना चाहूंगा कि इसी रेट से अगर आप बजट भी एनालाइज करके बढ़ा देते हर एक फील्ड पे, और अगर वो बेसिक इकोनॉमिक्स की समझ की बात कर ही रही हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि इन्फ्लेशन भी काउंट होता। तो इन्फ्लेशन जो कि 6% है, जीडीपी जो कि 7% है, 7 और 6% जोड़ के 13 होता है। आप हर एक फील्ड में 13% बजट जोड़ के ऐड करके मुझे दे दो, फिर बेसिक इकोनॉमिक्स से बात करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद माननीय सदस्य। 5 सेकंड लास्ट आंसर आपकी तरफ से मैं लूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि 2 से 3 सेशन के बाद विपक्ष दल एटलीस्ट डाटा लेकर तो आया। 2 से 3 सेशन में तो हवाबाजी ही बात चल रही थी, डाटा इस बार फाइनली आया है। सेकंड थिंग, मैंने 7.8% जीडीपी नहीं कहा है, मैंने कहा 7.8% जीडीपी था, जो कि रिसेशन के तौर पे जैसे सारे देश जा रहे हैं, ये भी रिसेशन पे जाता है, लेकिन 7% में मेंटेन किया गया है 7.8% के बाद। सेकंड थिंग, जो आप ये इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार में 12 से 14% का इन्फ्लेशन था, हमारी सरकार तो भी 6% पे टिकी हुई है। तो आप पहले खुद की सरकार का काम देखिए। ओके, सप्लीमेंट्री टू दैट सर। ओके, अलाउड सर सेम सिचुएशन में चाइना ने 10 से ऊपर के जीडीपी रेट रखे थे, क्या हम वो मैच कर रहे हैं? और रही बात हमारे पास की, तो हमने तो कुछ नहीं किया। प्लीज आप क्या कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। आपके डेटा है ना कि आप 7% जीडीपी दे रहे हो और 6% का इन्फ्लेशन है, तो मनी काउंट कर लो। लास्ट ईयर आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे, आप कह रहे हो जीडीपी में बढ़ने की वजह से जस्ट 10 सेकंड्स मोर, इस साल आप 107 रुपए खर्च करने के लिए एबल हो गए, और क्योंकि उस 107 रुपए की वैल्यू ही 106, तो 6 रुपए और ऐड करके वो 113 हो जाएगा। जस्ट स्पेंड दैट मनी। मंत्री जी, सर इकोनॉमिक्स के मंत्री उनको बोलने दीजिए। उप प्रधानमंत्री और मंत्री जी, ओके, उप प्रधानमंत्री जी आप बोलिए। सर जो उसने बोला कि जो चाइना का ग्रोथ रेट था वो 10% से ज्यादा था, वो क्यों है कि क्योंकि मतलब उसने को उन्होंने कर लेते माननीय तो काफी अच्छा होता सर। सर बोलने ही नहीं दे रहे सर। कंटिन्यू। सर मैं ये बता रहा हूँ, चाइना फॉलो करता है मतलब डिक्टेटरशिप का शासन, और ये इधर है डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी में सबका सुनवाई के बाद होता है काम, और अगर कुछ इधर उधर मतलब नहीं, ग्रोथ रेट पे हो रहा है तो वो है कि मतलब सौरव प्लीज, संसद के नियमों के अनुसार आप अपनी बात रखिए, ये जरूरत नहीं है एक्सट्रैक्शन की। आप बोलिए माननीय प्रधानमंत्री। तो सर मैं ये बता रहा हूँ कि जो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये सौरभ जी, मैं सर इसको नकारता हूँ, और ये सर सदन को गुमराह करने के लिए बात कर रहे हैं। धन्यवाद। सप्लीमेंट्री टू दैट सर, इन्हीं के नेताओं का कहना है चीन को पीछे छोड़ देंगे। नहीं 400 मुद्दे की पे स्पीड पे बुलेट नहीं, सर सप्लीमेंट्री नहीं आप नहीं, नो मोर सप्लीमेंट्रीज विल बी एक्सेप्टेड। माननीय ओके, थैंक यू सो मच सर। फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलना चाह रही है, उसके बाद कार्रवाई को मैं आगे बढ़ाऊंगा।
Honorable Minister of Finance. Thank you, Speaker sir. Sir, in the very beginning of my speech, in the whole 3 days, I had always pointed out that right now the whole world is going through disrupted supply chains, global challenges, multilateral trade जो है वो पूरा खराब हो रहा है. अगर वो इन्फ्लेशन की बात कर ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स के वो ज्ञाता है बहुत बड़े, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त इकोनॉमी की क्या सिचुएशन चल रही है, एंड इंडिया इज स्टिल अपनी तरफ से बहुत ज्यादा काम कर रही है और बहुत ज्यादा बढ़ रही है और अपना आप को पूरा इंसुलेट करने की पूरी कोशिश कर रही है कि वह इस इंटरनेशनल जब क्योस चल रहा है उसमें वो बात कर सके. हमारी जो ऑपोजिशन है वो जानती है ये चीज कि जब ये इंटरनेशनल मुद्दा आएगा तो वो इसमें बोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो इंटरनेशनल इस एस्पेक्ट को वो पूरा इग्नोर कर रही हैं. तो इसलिए ऑपोजिशन को देखना चाहिए इकोनॉमिक्स से ज्ञाता होने से पहले. धन्यवाद. Supplementary to that, sir, because he took my name. पर वो बिना आपसे परमिशन नहीं, के सप्लीमेंट्री नहीं, बोल रहे, परमिशन नहीं. नहीं ले रहे हैं वो. आपको नहीं, अध्यक्ष जब अलाउ करेगा तब आप बोलेंगे. मैं अभी के लिए मैं सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा. समय का प्रतिबंध है. माननीय सदस्य शिवली पांडे अपनी बात सदन के सामने रखें. Honorable Speaker, sir, the detailings of Union Budget 2026-27 with regard to Health Ministry has already been laid by the State Minister. So today I am here to address the 3 prominent issues that has repetitively been raised by the opposition. The issue one which was raised was regarding the ground level condition of rural areas. To address that, I will be quoting as of Rural Health Statistics 2020. 1,55,404 rural sub-centers were established. 18,610 Ayushman Bharat Health and Wellness Centers were established, and 24,918 rural primary health centers were established. Moreover, a scheme, Janani Suraksha Yojana, which is 100% centrally sponsored under National Health Ministry, established reducing maternal and neonatal mortality. The second issue which was raised was regarding the lack of doctors. The primary reasons for the lack of doctors is A, poor infrastructure, and B, lack of career incentives, on which the government is primarily focusing now. Thereafter, the medical education capacity is increasing. It will be increased. The seats are increased in the PG seats as well as for the MBBS. 1 lakh new allied health professionals are trained, and 1.5 lakhs of caregivers are being trained under National Skill Qualification Framework. Lastly, the third issue which was raised regarding the affordability. Through Biopharma Shakti Initiative, cheaper cancer treatment along with other rare disease treatment will be provided, and full exemption from custom duties on cancer medicines is being provided. Moreover, Ayushman Bharat has been expanded to provide free health coverage of 5 lakh rupees per year to the families, and its coverage is also extended to ASHA workers, the nurses, and Anganwadi workers and their helpers as well. Thank you. धन्यवाद. माननीय सदस्य सुब्रमण्यम श्रीनिवासुला, point of order. Thank you, Speaker sir. I mean, the ruling party has made वो लोग कहते हैं हम बिना इंफॉर्मेशन के वजह से हम हवा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो बोला. लेकिन I am going to quote the issue regarding the state of Telangana, which contributes 4.75% of the country's economy, and also we are going to contribute the country's development by 10% in 2047. देश में पहली बार Earth Sciences University established in Kottagudam at December 2025, and also the Young Indian Physical Education University, which allocated the 465 crore rupees budget in the 200 acres in Hyderabad at October 2024. शॉर्ट में रखिए. वो लोग बायोफार्मा शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं. जी एक मिनट. और उन लोगों की वादा है काजीपेट में कोच फैक्ट्री डालने के लिए, और कोत्तागुडम और मामनूर एयरपोर्ट्स भी सैंक्शन हुआ है, लेकिन वो सिर्फ दस्तखत करके फाइलें बनाकर कोने में दबा दिया है. मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि वाई सेंट्रल गवर्नमेंट शो इट्स स्टबर्न
in the budget towards the Telangana, which is providing much cooperation towards the development of this nation. Thank you. Thank you, sir. Another point of order, Honorable Member Vijay Indu Shastri. Yes, ma'am. The ruling party have clearly pointed out they have done very enormous good jobs in the health and the maintenance of the welfare of the peoples. And I would like to point out the stats that according to the latest annual ground quality report 2024 paints that 1/5 of the samples over 440 districts exceed safe contamination limits. And particularly in Punjab, a third shows uranium above permissible levels with fluoride, nitrate, and arsenic that's also widespread. So I would definitely ask the so-and-so ruling party to answer how are they addressing this that actually questions the people's basic quality of living. Yes, ma'am. And also, the World Bank estimates that environmental degradation, largely from the polluted water in the soil, drains India for nearly $80 billion each year, around 6% of GDP. So health costs from unsafe water runs into billions annually, while waterborne diseases result in millions of loss of working days, which definitely reduces the GDP. I would like the ruling party to answer this question. Ministers, ruling party ministers, answer the question. Ma'am, I would request Indu Joshi to repeat her question and in a crisp manner, not to state the statistics, and simply get to the point. What is her question exactly? What is the ruling government have done with regards to the contaminated groundwater thing? And also secondly, that is my first question. And secondly, what is the government have done with related to environmental degradation, which is particularly happening in these kind of districts like Punjab, where these kind of pollutions are happening, where it drains about 6% of people's GDP? Definitely, I will answer. Speaker, sir, I'm seeking permission to answer this question. Yes, please answer. Yes. इस सदन के माध्यम से ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये सरकार एनवायरनमेंट को लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम उठा रही है। एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी के लिए देखिए, जो कंटामिनेटेड वाटर की बात की गई है उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर आने वाले समय में ज्यादातर लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। उसके साथ साथ जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ेगी, उसके साथ जो कंटामिनेटेड वाटर है उसका लेवल बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो लोग बोरवेल लेना चाहते हैं उनको भी डिक्रीज किया जा रहा है। बोरवेल्स को थोड़ा सा रिफिल कैसे किया जाए, इसके ऊपर काम चालू है। और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके थ्रू इसको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर, एक बात। और दूसरी बात जो इंदुजा जी ने उठाई है एनवायरमेंट क्लाइमेट के हिसाब पर, तो क्लाइमेट के लिए प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से आने वाले समय में हर घर पर सोलर कैसे लगे उसके लिए हम सब्सिडी मुहैया करा रहे हैं। और सब्सिडी के माध्यम से आज तक 50% लोगों तक ये प्रोजेक्ट कैसे पहुंचेगा और आने वाले समय में हर घर को ई ऊर्जा के माध्यम से जोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है। उस पर हम फिलहाल बहुत अच्छे नंबर से सक्सेसफुल है। आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज पर ये सरकार एक एक्टिव प्लान बनाकर इसके साथ आगे बढ़ेगी और ई ऊर्जा के साथ देश को विकसित बनाएगी। धन्यवाद। लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ कहना चाहते हैं? मैम यस, मेंबर ने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से क्वेश्चन को घुमा दिया। वाटर कंटामिनेशन पे क्वेश्चन किया गया था, वाटर कंजर्वेशन, सोलर एनर्जी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने डिस्कस कर लिया। हम जो वाटर की टॉक्सिसिटी बढ़ रही है उसके पीछे जो मतलब हेल्थ क्राइसिस हो रहा है, 6% ऑफ द जीडीपी जो कि इसके पीछे जा रहा है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। वो क्वेश्चन किया गया आपसे, आपने पूरा क्वेश्चन एनर्जी एग्जैक्टली, प्लीज सौरभ टोन, तो आपने पूरा टॉपिक घुमा दिया है। तो आप मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते तो आप साफ साफ बोल दीजिए, बट ये आप दूसरे सपने क्यों दिखा रहे हैं? मैं इस सदन को ये बताना चाहूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी ये बताना चाहूंगा, हम सपने दिखाते नहीं, हम सपने पूरे करने के लिए प्रयास करते हैं और पूरा करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं।
पहली बात जो वाटर तो वो कंटेनमेंट की दिख रहा है, कंटामिनेट डाटा की दिखा बात रहा है। सुनिए शॉर्ट सुनिए में सुनिए कंसल्ट करिए, जल्दी से आंसर दे अध्यक्ष दीजिए जी विद इन 5 अध्यक्ष जी सेकंड। अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी, ये विपक्ष को ये बात सुननी चाहिए कि वाटर कंटेमिनेट को रोकने के लिए ये सरकार ने जो कदम उठाए हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस, जल्दी से कंप्लीट कीजिए हाँ, अपना आंसर। वो एक्टिव ये सरकार एक्टिवली काम कर रही है वाटर कंटेमिनेट को रोकने के लिए। ये सरकार सक्सेसफुल हो रही है और आने वाले समय में वाटर कंटेमिनेट को और 0% पर लाने की कोशिश हमारी है। हमारे कैपिटल में नीला और काला पानी आ रहा है। मैम ऑनरेबल मेंबर, मेंटेन पार्लियामेंट अध्यक्ष डेकोरम। जी, अध्यक्ष जी, जो जो स्थिति अभी फिलहाल नेशनल कैपिटल के बारे में बोली गई है वो एक गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। हाँ, हमें पता है कुछ एरिया में जो वाटर पोल्यूशन बढ़ा है उसको रोकने के लिए मशीन्स बैठाई जा रही है। हमने फॉरेन से इक्विपमेंट भी मंगाए हैं और यमुना रिवर का जो पानी है उसको कैसे फ्रीश किया जाए और कंटेमिनेट को रोका जाए, इसके ऊपर प्रतिबंधक एनवायरमेंटल लॉ के थ्रू काम किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट ऑनरेबल मेंबर अंशुमन मिश्रा। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैम। मैम, जो इंद्रजा मैम का जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग contaminated water and environmental degradation, so action against the contaminated water is being taken through massive funding, specialized solution. अंशुमान, आपको अपनी स्पीच बोलने के लिए टाइम दिया है, ना कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए। Oh, sorry sir, sorry. So thank you honorable speaker sir. Ma'am, hello. Yes, Hello. continue your speech. Yes, thank you, ma'am. I extend my heartiest support to the Union Budget 2026, which is led by my government. So, India is a country of 1.4 billion people, and its demography is dividends only when we create skilled Amrit PD who can realize the vision of Viksit Bharat 2047. We have to convert our demography and youth into a demographic dynamite which can propel the growth of India to become Viksit Bharat and also to achieve $5 trillion economy, 5 lakh crore economy rupees. Requires Amrit Kal growth sprint and turning today's reform into tomorrow's prosperity. Honorable Speaker, ma'am, my speech is not just formality, but it's reflect reality. Our budget 2026-27 is aiming towards all these goals. In the day of globalization may be a thing of past. We calculate towards domestic priorities as well as we have to manage the impossible trinity of net zero. That is fiscal sustainability, net zero goal, and global competitiveness. Honorable Speaker, ma'am, prior to the announcement of the budget, our government has announced GST 2.0 reform, which impact consumption boost, manufacturing trade boost, structural reform, and its outcome is 69% women entrepreneurs have accessed all microloans. So microloans mainly include some yojanas like Pradhan Mantri Mudra Yojana and Pradhan Mantri Street Bandhak Nidhi. So no power on earth can stop an idea whose time has come. The budget is not just a collection of numbers, but an expression of our aspirations, and it's a highway of opportunity. Jai Hind. Thank you. Point of order recognized. Leader of opposition. यस मैम, मेंबर ने बहुत अच्छी तरह से जेंडर बजट के बारे में बात की, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, बट आई वुड लाइक टू आस्क कि राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेस देन 0.05% ऑफ टोटल आउटले मिल रहा है आउट ऑफ द होल बजट। भले वो 9.37 बजट बढ़ गया, लेकिन स्टिल टोटल जो अभी उनको दिया जा रहा है वो इतना ही है। और वहीं जब आप नारी शक्ति की बातें करते हैं, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, बट आपकी स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, उसमें अब तक आज की डेट में जब इतना राइजिंग इन्फ्लेशन है, फिर भी हमें उसमें बजट में उनके बजट में इतने टाइम से लाइक 0 इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस पे आपका क्या टेक है? मैं आंसर मैम। यस। जैसा कि इन्होंने प्रश्न किया है, जैसे सरकार ने इस बात जो इसे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये ऐसा बजट है जिसने जेंडर जस्टिस किया है। इसमें 5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ये पूरे बजट का 9.37% है और पहले ये 8.8 के आसपास कुछ इसका आंकड़ा था। तो इस बजट के अंतर्गत कुछ नहीं बहुत ऐसे कार्य किए गए हैं जो मैं बताना चाहूँगा।
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम को हमने फिर से लाया और इसे आगे बढ़ाया। ये एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इसमें 23,000 करोड़ के आसपास आवंटित किए गए और इसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को और जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत कुछ किया गया। मिशन शक्ति को फिर से लाके इसको स्थापित किया गया और इसमें भी 3,000 करोड़ के आसपास जो आवंटित किए गए। जल्दी से कंक्लूड करिए, समय सीमा का ध्यान रखिए। मैं संवाद कर लिया जो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए है, इसमें भी 1,000 करोड़ के आसपास खर्च किए गए हैं और ये अभी हाल ही में हुआ है, तो इसका अगर आउटकम आप तुरंत पूछेंगे तो ये संभव नहीं है, इसमें समय लगता है इसके आउटकम आने में, क्योंकि ये बजट 2024 का है। और कुछ और भी ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के काम किए मंत्री जी कैमरा खुल जाता तो एआई वाला सेक्रेटरी बंद हो जाता। मार्च से और लखपति दीदी योजना जैसे पहले इसके बारे में बताया जा चुका है, और दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें भी हमने अच्छा खासा बजट दिया है। नमो ड्रोन दीदी जो सबसे आवश्यक है, देश भर के ड्रोन दीदी स्थापित किए हैं। हेल्थ केयर और एजुकेशन फोकस में स्टीम एजुकेशन, कैंसर रिलीफ, एडोलेसेंट हेल्थ, इन सब पे हमने कार्य किया है और अच्छा हम कार्य करते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आए, इसमें हम स्वागत करेंगे, उसमें और सुधार करेंगे। धन्यवाद। चलिए, वन मोर क्वेश्चन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मैम, मैंने उनसे एक पूछा था, उन्होंने मुझे पूरी अल्फाबेट की सीरीज बता दिया। अगर आपकी सक्सेसफुल स्कीम्स का मुझे देखना होता तो मैं आपकी वेबसाइट पे देख लेती, बट मैं आपकी जो स्कीम काम नहीं कर रही है मैं उसका पूछ रही हूँ। आपने मुझे 50 स्कीम्स गिना दी, बट इन 50 स्कीम्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो टोटल बजट है वो 0.05% ही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जेंडर जस्टिस है? और जिस स्कीम के बारे में मैं आपको पूछ रही हूँ, मैं आप उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कीजिए। मैं जानती हूँ आपकी बहुत सारी स्कीम्स चल रही है नारी शक्ति के लिए, बट ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है सर। ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, जैसा मैंने कहा कि अभी ये बजट आया है और ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन 1 या 2 दिन में नहीं होते, इसमें समय लगते हैं। लेकिन अगर इसकी कंपेरेटिव एनालिसिस की जाए तो आपने बोला 0.5% है, इससे पहले कितना था आप ये भी बता दीजिए, तो आपको खुद ही इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि ये बड़ा है, इंक्रीमेंट की ओर हुआ है। तो विमेन हो, चाइल्ड हो और सीनियर सिटीजन हो, इन तीनों के लिए आपने सिर्फ एक सीमित प्रश्न पूछा है, मैं सबका उत्तर दे रहा हूँ, इंक्लूडेड इन तीनों के लिए कार्य किया गया, पहले की अपेक्षा इसमें बढ़ोतरी हुई। ऑनरेबल मेंबर, 2 लाइंस में आंसर कंप्लीट कीजिए अपना। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट ऑनरेबल मेंबर अमन मिश्रा। थैंक यू सो मच ऑनरेबल स्पीकर मैम। आज पहली मर्तबा इस बजट पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और कायदा और नियत तो ये कहता है कि सरकार का विरोध ही करना चाहिए, मेरा पद भी कहता है और वो मैं कर रहा हूँ। तो आज एक ऐसे समय में इस बजट को पेश किया गया है जहां भारत ट्रेड वॉर और अमेरिका से टैरिफ जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और बड़ी उम्मीदें हैं इस आवाम को इस सरकार से, जो कि पूरी करनी भी चाहिए। मुख्यतः 3 कर्तव्य की बात करी गई है इस बजट में। पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल एस्पिरेशन और इंक्लूसिव अपने बिहार मेरा घर है, तो किसी भी शुभ काम की शुरुआत अपने घर से ही की जाती है और बात अमृतकाल की होती है, बिहार में विषकाल से चलता है। बिहार का मतलब होता है मठ, जहाँ पे शांति, समरसता, अपनत्व की भावना। यहाँ पे क्या है अभी, लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम 13%, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग कहती है। हाईएस्ट पॉवर्टी 33.76%। इंडस्ट्री लैग, उसका तो पूछिए मत, बिहार को इंडस्ट्री तो मिलता नहीं है। 23 एम्स देने के वादे किए गए थे सरकार के द्वारा, वो एम्स अभी कहाँ कहाँ बने हैं, कौन कौन से दुनिया में बने पता नहीं चलता। एक्सप्रेसवे 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया था चुनाव के दौरान, वो एक्सप्रेसवे कुछ बने, मैं मानता हूँ, इस चीज के लिए तारीफ भी करता हूँ, लेकिन और आधे एक्सप्रेसवे पता नहीं कहाँ मंत्रालय में चल रहे हैं कि कहाँ पे चल रहे हैं पता नहीं चलता। बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया था 58,000 करोड़ का, जिसमें से 21,000 करोड़ का एक बिजली घर देने का वादा हुआ था। ये बिजली घर शायद से कौन से मंत्रालय में चलता होगा ये भी नहीं पता। बिहार के समय में, आज के समय में बिहार से फर्टिलाइजर पूरी तरीके से गायब है। किसानों को मतलब जोरदार तमाचा सरकार द्वारा ही मारा गया है, जिसका ये रिजल्ट आता है कि 300 से 400 किलो क्विंटल गेहूं बिक रहे हैं। अभी आते हैं थोड़े से केंद्र के समस्या पे, रोड्स की बात करते हैं। ये परिवहन मंत्रालय और परिवहन मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए इसमें। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे काम भी किए गए, बहुत एक्सप्रेसवे बना दिए गए देश में, बहुत अच्छे अच्छे, उसके लिए तारीफ करता हूँ। लेकिन जब लोकल रोड्स की बात आती है, एक बड़ा सामान्य सा प्रोसेस चलाया जाता है, रोड को बनाओ तोड़ो, मतलब 5 साल में
एक ऐसे व्यक्ति की रोजगार की उपाय किया गया है, वो सिर्फ ठेकेदार है, इंजीनियर है और किसी का नहीं। कहीं पे 90 डिग्री का फ्लाईओवर बना दिया जाता है, पता नहीं कौन से दिमाग लगा के। तो 4 लेन का फ्लाईओवर बीच में ही जाकर 2 लेन का हो जाता है। मतलब मैं जब रोड की बात करता हूँ, रोड वाले मंत्रालय की, तो हेल्थ सेक्टर मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जब आप ऐसे रोड्स पे एक्सीडेंट करिएगा ना, आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं है जनाब, क्योंकि हॉस्पिटल की आपको मारामारी से जूझना ही है। सीधे रोड पे एक्सीडेंट करिए, सीधे स्वर्ग पहुंचिए, हॉस्पिटल तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा इसमें। आते हैं आपके होम मिनिस्ट्री पे थोड़ा सा। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है पूरी पुलिस व्यवस्था। आज की पुलिस व्यवस्था की हाल क्या है? जो हमारी रक्षा करते हैं, 24 घंटे हमारे लिए रहते हैं इन ह्यूमन वर्क कंडीशन एंड शेल्टर। 24 से 18 घंटे का वर्क उनका लाइफस्टाइल है, पूरी ड्यूटी है। उसमें से उसके बाद अगर पुलिस वाला घर जाता है, उसको ना सोने का ढंग का छत मिलता है सरकारी आवास, ना ढंग का खाना मिलता है, ना सैलरी भी ढंग से। 70% पुलिस वाले को आज तक ढंग का घर नहीं मिला है। ये हाल है हमारे पुलिस वाले पे। अब देखिए, आउटडेटेड आर्म्स, मतलब आज के पुलिस वालों को 303 जैसे राइफल्स दिए गए हैं, जहां अपराधी AK-47 लेके आते हैं। अब वहां से AK-47 फायर होगा, यहाँ से एक राउंड चढ़ाया जाएगा 3 वोल्ट 3 उस पे, पुलिस वाला खत्म। कमांडर जैसी जीप आज भी यूज होती है पुलिस व्यवस्था में। ये मतलब शर्मनाक बात है। मतलब अपराधी आएंगे फॉर्च्यूनर से, डिफेंडर से, और हमारी पुलिस वाले पहुंचेंगे कमांडर जीप से, जिसमें कहाँ तो मुश्किल से 60 से 80 की स्पीड जाती है। तो ये सारी बातें थी, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और विपक्ष सिर्फ इस देश का विपक्ष नहीं होता, मतलब इस देश के विपक्ष में नहीं बोल रहा होता, इस देश की जो जनता होती है उसके लिए आवाज उठा रहा होता है। तो उम्मीद है इस पे सकारात्मक पहल करिएगा आप लोग। धन्यवाद। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिकॉग्नाइज ऑनरेबल मेंबर मंत्रा। जी मैम, नमस्कार। तो मैं पहले इन्होंने जो रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बोला था, तो आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट। जी, like we are noticing a lot of accidents on the roads, and yes, we are aiming to target this via this budget. Firstly, to address your concern on why the corruption is happening regarding irregularities, firstly, it's because there's no transparent communication, and this budget is going to be aiding that transparent communication and process flow. Then there is inadequate monitoring of projects which are ongoing or projects which are currently in execution, and there are also substandard materials. So we are bringing up policies in which we will be able to streamline this while monitoring and keeping clear accountability of all contractors, which previously the governments were not able to keep the contractors accountable of even maintaining the roads after they lay it. So previously what the contractors would do is, after they lay the roads, their hands are off the project, because they say that we're not paid extra, or we don't have any responsibility in the contract to maintain the roads. So this time we have a clear cut way to keep them accountable throughout the process of both laying the roads as well as this thing. Also regarding the safety, yes, for especially for highways and a lot of critical turnings and this thing, we are bringing up special engineering methods in which all those accident prone black spots areas that we are noticing in the road and transportations, we are addressing those by bringing up special engineering features, correcting and refurbishing all those older this thing. So this year it will not be a target of only the kilometer. धन्यवाद। या शॉर्ट में रखिए अपनी बातें, समय सीमा का पाबंदी है, तो सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा अपनी बातें शॉर्ट में रखें। कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स है जो कि मैं देख रहा हूँ, मैं उनको अलाउ करूंगा, उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य शिवली पांडे। ऑनरेबल स्पीकर सर, अमन जी ने अभी एम्स के बारे में चर्चा की है कि उन्हें पता नहीं है कि एम्स कहाँ है, क्या हो रहा है, अपडेट क्या है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी, बिहार में 2 एम्स हैं। एम्स पटना जो है वो फुल्ली फंक्शनल है और प्राइमरी एम इंस्टीट्यूट एज अ प्राइमरी एम इंस्टीट्यूट वो सर्व कर रहा है बिहार में। और ये NICU और स्पेशलिस्ट यूनिट और टर्शरी केयर उस स्टेट में इम्प्रूव करने की ओर चल रहा है। दूसरा है एम्स दरभंगा, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका फाउंडेशन 2024 में ले डाउन हो चुका है, जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है। दूसरी चीज़, उन्होंने हॉस्पिटल्स की बात की थी। बिहार में हम सेंट्रल गवर्नमेंट मल्टी ईयर फंडिंग प्रोवाइड कर रही है हेल्थ के लिए, इंक्लूडिंग 1400 करोड़
सब हेल्थ सेंटर्स के लिए और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के लिए सिग्निफिकेंट एलोकेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, यहाँ धन्यवाद। तक कि इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी शॉर्ट में रखिए अपने आंसर। मंत्री और से निवेदन है जी, धन्यवाद। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य सौरव अपनी बात सदन के सामने रखे, समय सीमा के अंतर्गत अपना भाषण सदन के सामने करें। मैं मंत्रा जी से बस एक डेटा देना चाहूंगा कि नहीं, रोड आप बन डेटा तो रहे हैं, नहीं, सिटीज में तो बहुत बन रहे हैं, हाईवेज बहुत आपको बना रही है भारत सरकार। बस मुझे एक डेटा देना था, वो था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। आपको यहाँ पर 19,000 करोड़ का बजट था, सिर्फ 11,000 करोड़ खर्च किया, 8,000 करोड़ रख के बैठे हुए हैं पॉकेट में। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए समय नहीं दिया आपको, आपका भाषण रखने के लिए मैंने समय दिया है सदन यस सर, डन हो गया सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी चांस। हो गया, ठीक है, धन्यवाद। सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य पीटर मारियंटो। सर माय चांस, लाइक आई हैव टू स्पीक फॉर 1 minute and 30 seconds। अभी बोला ना आपने, हो गया। अभी बोला आई वाज सेइंग फॉर दैट डाटा कि 20,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ खर्च किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे, 8,000 करोड़ लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं इस बार हम और बजट पास करें। डेकोरम Let me sir, मैं इसी पे बोलना चाहूंगा कि इनको ये बोलना चाहिए कि बिहार की राजनीति का स्थिरता हमारे उनकी आजादी बारी की है, बहुत उनको रही बोलने और दीजिए ना। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन बिहार में इन हाँ, लोगों का है। उनकी बारी है, पहले आप बाद में बोल लीजिएगा, उनका होने के बाद आप बोलिए, अपना भाषण सदन के सामने रखिए। Honorable Speaker, sir, thanks for the opportunity. So, everyone saying about budget outcomes, I would personally focus more on the education priorities of this year's budget. Studying basic mathematics. This is the quantity education is provided. And apart from that, many government schools want their teachers, basic facilities, labs, laboratories, computer labs, nothing. And then this budget gives money, but is that enough to pave the way to academic success? The budget celebrates digital education, but 1/3 of Indian students still don't have proper internet, any digital sources, nothing. So how can learning succeed when the digital divide still remains there, especially in urban and rural areas? And then go to higher education. Many public universities still pay stagnant grants, they don't get proper funding. And because of this, the student fees continue to rise. Education inflation was the biggest issues in our It's the most inflating thing. What solutions are you looking for that? And then especially many scholarships for SC, ST and minority communities are often delayed, causing many first generation learners to drop out. So they cannot properly get the education they deserve. And you also speak about skill development. But let's accept the honest fact in India. The more educated you are, the more likely you are to be unemployed. That's the harsh reality of today's India. So this shows a clear mismatch between education and employability. The more educated, the more unemployed. That's how it's going now. And so I just ask, why does the budget continue to keep underfunding education? At just 3%, do you expect that India's demographic dividend can really be improved and our human quality can be improved by just 3% of the GDP? So a nation cannot claim the progress if students are forced to study in such bad quality of educations. So what I'm just trying to say is the education funding allotment which you have provided is not at all enough for what we need. So the budget speaks of the future of India, but fails to invest in the current youth. And that's all my point. Thank you. धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ, क्योंकि अगर एक व्यक्ति, आप ही के नेता है सभी, एक व्यक्ति अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करे तो सही है, सभी लोग एक साथ पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं, तो एक एक करके इनिशिएटिव लीजिए ना रेज करने का, सदन सुचारू रूप से चलेगा अगर ये हुआ तो। ठीक है, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। ओके, विजय इंदुजा श्री। सर मैं भी थोड़ा Yes, sir. I would like to add on to the point. According to the Niti Aayog report, AI could displace upon 2 million jobs in Indian tech sector. So within next 5 years, so 2030. So what are all the government is making to people to demand this kind of news? What are the government spending? Also, what are the adaptability measures government is spending on the students for this kind of changes in the upcoming years, sir? I would like to listen to that, definitely.
Okay, the answer will be taken up in the next session. सदन की कार्रवाई समय की सीमा के चलते आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य सौरभ, अब आप अपनी सर बात सदन के सामने रखिए। सर एक प्लीज सर, आप प्लीज देखिए, अगर कोई अर्जेंट बेसिस पे आपको बात रखनी है तभी आपको मौका मिलेगा, बहुत अर्जेंट है तो ही। हाँ जी सर, अर्जेंट बात, मतलब यही थोड़ा क्वेश्चन के एजुकेशन पे आ गया तो सर नहीं, एक आपको छोटी सी नहीं, प्लीज सर आंसर्स विल बी एग्जांपल। टेकन अप इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको कुछ अर्जेंट कुछ ब्रीच किया है उन्होंने तो आप बोलिए, वरना आंसर्स विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू सर। माननीय सदस्य सौरभ, अब आप अपनी बात सदन के सामने रखिए। जी, धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बड़ी विशेष चीज की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जो है इस सरकार में डिजिटलाइजेशन। ये सरकार नए-नए नाम रखती है, नई-नई योजनाएँ बनाती है, कभी कहती है समर्थ भारत, एब्रिविएशन ढूँढ-ढूँढ के लाते हैं। ऐसी-ऐसी एब्रिविएशन खुद ही पूरी नहीं कर पाते हैं। तो अब कभी राम जी आगे कर रहे, कभी राम जी पीछे कर रहे, नो करे जो नो राम नो जी। नो, तो मेरा कहना ये है मुद्दे पे रहिए आप। नहीं, आपको जस्ट बजट पे बात करने, आप ऐसे स्टेटमेंट जय श्री राम तो हम भी बोल सकते हैं, इनका थोड़े राइट है सर उस पे। नहीं, मतलब आप बजट पे बोलिए ना, मैं ये बोल रहा हूँ बजट पे जी, जी, जी। बोलिए। हाँ। तो सर मेरा कहना ये है कि आप डिजिटलाइजेशन करके नई-नई स्कीम्स लाते हैं, आप बोलते हैं कि हमने इस चीज़ पे इतना पैसा खर्च कर दिया, इस पे इतना। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप आधार सीडिंग करते हैं और कहते हैं कि हम घोस्ट बेनिफिशियरी हैं, उन्हें हटाने के लिए आधार सीडिंग कर रहे हैं। फिर होता क्या है कि जो रियल लोग हैं, जिन्हें रियल में फूड की ज़रूरत है, वो आधार सीडिंग उन्हीं के केस में वर्क नहीं करती है और उन लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, जिनको वाक़ई में उसकी नीड है। यानी कि जो भी माइग्रेंट वर्कर दूसरे स्टेट्स में जाते हैं और वो अपना सेम आधार कार्ड यूज़ कर रहे हैं राशन लेने के लिए, तो उन्हें वो राशन नहीं मिल रहा है। सेकेंडरी चीज़ है ईपीओएस करके ये देते हैं राशन की दुकानों पे, जिससे कि इन्होंने कहा कि हम डीलर थेफ्ट को बचा रहे हैं। होता है क्या है कि अगर एक बार फिंगरप्रिंट डिनाई हो जाता है तो डीलर थेफ्ट तो हो या ना हो, लेकिन उस इंसान को खाना नहीं मिलने वाला है। ये कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं सबको, लीव दैट कि तुम 5 किलो दे रहे हो 10 किलो दे रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जितना भी उसे मिलना है वो मिल किसी को नहीं रहा, क्योंकि मशीनी फेलियर हर रोज हो रहा है। तीसरी चीज़ है डिजिटलाइजेशन के नाम पे बोलते हैं कि जी हम तो डीबीटी कर रहे हैं, डीबीटी कर रहे हैं। बिहार का इशू सबको पता है कि औरतों को देने थे 10-10 हजार रुपए, आदमियों तक ने रिसीव कर लिए अपना अपना नाम भर के, और ये कह रहे थे कि हम मिडल मैन हटा देंगे। इन्हें जेंडर का फर्क समझ में नहीं आ रहा। और एक और नई चीज होती है, जब ये पेंशन बांटने पाते हैं इसी डीबीटी के थ्रू, होता है ये कि 500 रुपए की पेंशन मिल रही है किसी बूढ़े आदमी को, और वो कहीं रिमोट एरिया में 18 किलोमीटर चल के जा रहा है। तो क्या है ये, मतलब क्यों कर रहे हो आप ऐसे ऐसे काम कि 18 किलोमीटर का वो खर्चा देगा अपना रास्ते जाने का और आपके 500 रुपए लेने जाएगा डीबीटी के, कहाँ बैंक में? तो जस्ट आस्किंग ऑन दिस डिजिटलाइजेशन होक जो ये क्रिएट कर रहे हैं कि Okay. हमने ये कर दिया। Okay, please conclude. The House will now take up point of orders. Honorable Member Sanskriti. थैंक यू सो मच सर। जैसा कि विपक्ष दल बार बार बोल रहे हैं डिजिटलाइजेशन का नारा हम लगा रहे हैं गलत, तो इनके हिसाब से क्या करना चाहिए? हमें वैसे ही वो फिजिकल फॉर्मेट में पेपर कागज पत्री पे काम चालू करवा देना चाहिए, डिजिटलाइज कर देना चाहिए। डिजिटलाइजेशन के तहत ही तो कितने सारे लोगों को जैम के तहत या जन आधार लिंक करवा के कितने लोगों को तो इसी वजह से तो करप्शन कम हो पा रहा है। ठीक है, लूप होल्स होंगे, हर कानून में लूप होल्स होते हैं, मैं नहीं मानती कि लूप होल्स नहीं होंगे, बट डेफिनेटली आप ये देखिए ना कि कितना पॉजिटिवली इसका इफेक्ट हो रहा है। आज के टाइम पे जहाँ डिजिटलाइज हो चुका है, हर एक गांव का एक आदमी ठेले वाला भी यूपीआई आईडी से पेमेंट करता है सर। तो आप कह रहे हैं कि डिजिटलाइज के सिर्फ नारे लग रहे हैं, और आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखिए, आप गए गाँव में सप्लीमेंट्री टू दैट सर। Okay, supplementary allowed. सर गवर्नमेंट खुद ही अपना आधार कार्ड है उसको बोलती है कि इससे एसआईआर तो नहीं होने देंगे, मैं ये रियल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन राशन बांट देंगे हम आधार कार्ड पे। और यूपीआई को मैंने क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं किया, बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि किसी को भी अनाज बांटने के लिए आपको क्यों आधार कार्ड चाहिए, और किसी की रियल आइडेंटिटी को आप पहचान नहीं मानोगे आधार कार्ड के बेसिस पे। आप कहोगे कि आप मुद्दा को भटकाया जा रहा है, बजट से मुद्दा एसआईआर के ऊपर चला जा चुका है। स्पीकर सर, मैं इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहूंगा। मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है तो आपको अनुमति मिलेगी। नहीं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा हूँ। शॉर्ट में 10 सेकेंड्स ही मिलेंगे आपको। यस, विद इन 10 सेकंड्स। जो एसआईआर की बात है वो वोटर आईडी देने की बात है। जो लोग बाहर से बांग्लादेश से बंगाल में जो आए हैं उनके लिए एसआईआर बनाया गया है कि उनको नो मुद्दे पे जो मुद्दा सौरभ ने उठाया है उसी पे मैं बोलूं। हाँ, बजट पे। लेकिन क्वेश्चन बजट पे नहीं था, इसलिए मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। नहीं, वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, उनका जो भाषण था वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा बजट के लिए। सदन की हाँ, सदन वो काट दिया जाएगा रिकॉर्ड में। Sir, can I raise a point of information?
ओके, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्योंकि रेस किया है मैं आपको अलाउ करूंगा, प्लीज। द हाउस विल नाउ हियर द पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेज बाय ऑनरेबल मेंबर श्री नोयल जुड़े, प्लीज ऑनरेबल मेंबर। सर, ऑनरेबल एमपी सौरव जी ने कहा कि आधार कार्ड से अगर माइग्रेंट वर्कर को दूसरे स्टेट में राशन नहीं मिलता, वो लॉ था 2013 में, वो बदल गया है। अभी वन नेशन वन रेशन कार्ड और उसके स्कीम के तहत अगर आप बिहार के हो तो आपको मुंबई या दिल्ली में भी राशन मिल सकता है। तो बात ये है, जो उन्होंने स्टेट किया था वो गलत है सर, कि माइग्रेंट वर्कर्स को राशन नहीं मिल सकता, वो गलत है सर। Data would be provided in 10 minutes. वो सोर्स में पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, उनके प्रिंसिपल माननीय सदस्य आप ऐसे अध्यक्ष महोदय सौरभ जी ऑर्डर कर रहे हैं नोएल जी को कि आप 10 मिनट्स में हमको दीजिए, ताकि बल्कि उनको रिक्वेस्ट मैम इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेते तो काफी अच्छा हो जाता, इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेते तो काफी अच्छा हो जाता, उस क्लास में जाना था आपको। पूरी बात सुना कीजिए पहले। एक मिनट, रिया जी क्यों बोल रहे हैं बीच में आकर? अध्यक्ष महोदय एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट आप लोग बैठ जाइए। Why you were speaking, Miss Palak Goyal? That is why she was speaking. I am a finance minister, I can interrupt, sir. No, please. I'm the leader of opposition, I can also interrupt. सुनिए, सदन ऐसे नहीं चल सकता। एक व्यक्ति एक समय पे बोलेगा, फिर ही सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई को आगे। माननीय सदस्य सौरभ, आपके खिलाफ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेज हुआ है, तो आप प्लीज डेटा सदन के पटल पर रखें। नहीं, आप ऐसे एक्शन नहीं कर सकते, आप संसद में हैं, संसद नियम। सर फिर बोलूंगा, आप बोलोगे कि बोल रहे हैं सौरभ। नहीं, आप ऐसे एक्शन करके रिप्लाई मत दीजिए, आप बोल भी सकते हैं। सर आपने ये भी बंद कर दिए इसके इमोजीज में, तो इमोजीज दे देता आपको। नो, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। आप सदन में हैं, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। सर आपको ही तो बोल रहा है, मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ जी। आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं तो वो लोग आपको देखेंगे, अगर ये रिकॉर्डिंग वो क्या बोलेंगे आपको। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड until 10:55 PM। थैंक यू। माननीय सदस्य अंसारी उसामा। माननीय सदस्य अंसारी उसामा। माननीय सदस्य अंसारी उसामा, आप अपनी बात रख सकते हैं सदन के सामने। नहीं है, ठीक है। माननीय सदस्य आयुष गुरुंग। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। और आज इस सदन का आपकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन में जो बजट एलोकेट किए है उसके मैं बहुत बड़ा समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं आपको इधर मेरे होम स्टेट का एग्जांपल दूंगा। सिक्किम बीइंग अ स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, एंड सिक्किम को हर टाइम बजट में कम ही बजट प्रोवाइड किया जाता है, पर मैं बताता हूँ आपको कि वो लेस बजट में भी इतना एफिशिएंटली कैसे काम करते हैं। सिक्किम में जो एजुकेशन का पॉलिसी है वो है स्टूडेंट सेंट्रिक। हर स्टेट में स्टूडेंट सेंट्रिक ही होता है, पर वो पेपर में होता है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब सिक्किम में ऐसा बहुत एग्जांपल है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर्स मॉडल स्कूल जो अभी लास्ट ईयर ही इनॉग्रेट हुआ था। उधर गवर्नमेंट स्कूल का जितने भी स्टूडेंट्स है वो चीफ मिनिस्टर मॉडल स्कूल में आकर जो अच्छे और जो एवरेज स्टूडेंट्स है उसको मतलब एक एग्जाम पे बैठकर मतलब वो टेस्ट पास करना होता है, और उसके बाद जो मॉडल स्कूल में उनका एंट्री होता है। और उसके बाद सिक्किम में एक फ्री एजुकेशन का भी एक वातावरण है, और साथ ही साथ जो 80 सीट्स फ्री में डॉक्टर बनाते हैं, मतलब 80 MBBS सीट्स फ्री में मिलता है स्टूडेंट्स को। So these are the types of example that Sikkim has set, and even इधर का जो current I would not like to say the thing, but जो पायलट पढ़ाने का, इंजीनियर पढ़ाने का इधर वातावरण चल रहा है। So this is all because of the budget that has been allocated to this Sikkim, and इतने कम बजट में भी इतना efficiently काम करते हैं। So this has been मतलब काफी सारे स्टेट्स भी इसके आकर्षित होके
वो भी ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने स्टेट में। हाँ, टाइम लगेगा क्योंकि पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं हो पाएगा। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो really looking up to this matter. So soon we may have new bill related to this to implement whole in India as well. But education is related to the state matter. So हाँ जी, वो स्टेट को ही मिलेगा। और एक बात आपके द्वारा मैं इस सदन का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जो ऑपोजिशन के लोग कह रहे थे, मतलब कि जो एक एमपी ने बोला कि उनको स्कीम्स नहीं चाहिए, बहुत ग्लॉसी स्कीम्स है, और उन्हीं का एक एमपी ने बोला है कि मतलब हमको स्कीम किधर है। जब वो टूरिज्म पे बात कर रहे थे कि बोल रहे कि टूर गाइड्स के लिए स्कीम किधर है। तो मतलब एक एमपी ऑपोजिशन का बोल रहा है कि उनको स्कीम नहीं चाहिए, और दूसरे बोल रहे हैं कि उनको स्कीम चाहिए। मतलब उन लोग के पास वही नहीं है, कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो फर्स्ट दे नीड टू हैव द कॉन्शियसनेस, एंड ऑल्सो यही लोग बात करते हैं कि एक हाथ से आलू डालो, दूसरे हाथ से सोना निकालो। मतलब ऐसे सोच से इन लोग ने 50-60 साल में जो भारत को बर्बादी किया है, उसके मैं खंडन करता हूँ। और यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सीखना है तो सिक्किम का एग्जांपल लेके सीखिए, और यही हम एज नेशन वाइड भी अप्लाई करने के लिए ट्राई करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैं कुछ ही लोगों को अलाउ करूंगा, समय की पाबंदी है, मैं कुछ ही लोगों को अलाउ करूंगा दोनों पक्षों से। मैं सबको मौका नहीं दे पाऊंगा आज, पर मैं दोनों पक्षों की राय इक्वल तरीके से लूंगा। तो सत्ता पक्ष से ओके, सत्ता पक्ष से विजय इंदुजाश्री। Yes, sir. Yes, sir. I would like the ruling party has constantly emphasized on the word like inclusivity, but I would like to quote the one slogan which is being said in the budget, "Sabka Saath, Sabka Vikas," that exactly contradicts to the Oxfam studies, which says the richest 1% in India owns the 40% of country's total wealth, and while the bottom half of the population together just owns just 3 wealth. So this, I would like to point this data in front of the chair and ask the ruling party, where is Sabka Saath and Sabka Vikas possible in these kind of situation? ओके, धन्यवाद। लास्ट फाइनल रिमार्क मैं लूंगा इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष रिया शुक्ला, फिर मैं सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। जी सर, वेल सेड। इंदुजा ने बहुत सही पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है, मैं वो करूंगी। और जैसे कि मिस्टर आयुष गोयल ने बोला, वो डेप्यूटी पीएम है, मैं उनकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि सिक्किम एज एन एग्जाम्पल सेट कर रहा है आज की डेट में। बट एज अ डेप्यूटी पीएम उनका अप्रोच पैन इंडिया होना चाहिए, हर स्टेट के रिगार्डिंग होना चाहिए। आई गेट इट कि सिक्किम बेस्ट अपना परफॉर्म कर रहा है, दैट्स ग्रेट। बट बिहार जैसी जगह जहाँ पे आपने अपनी क्लेम कर रखा है कि 23 एम्स बनाएंगे, बट 2 है उसमें से भी एक स्ट्रक्चर मतलब अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, जो कि इन्हीं की मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है। तो इस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी ही स्टेटमेंट में। और जो हमारे पे कॉन्शियसनेस पे उन्होंने रेज किया था, वो ये था कि आपकी जो स्कीम काम नहीं कर रही है उनका, वर्सेस जो आपकी कर रही है बट अपना इम्प्लीमेंटेशन दिखा नहीं पा रही है। तो आप अंडरस्टैंडिंग में आपके इशू है, ध्यान से सुना कीजिए बातें। दैट्स ऑल। धन्यवाद माननीय सदस्य। सर, विथ योर परमिशन, देंगे आंसर। देखिए, आंसर्स विल बी टेकन अप टू द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन ऑल योर आंसर्स, ओके, थैंक यू सो मच taken up from the ministers. Thank you. Honorable member Gangotri. Honorable member Gangotri. Sir, am I audible? Your voice is breaking, sir. Honorable member Gangotri, please. Am I audible? Yes, you are. Yes, you are. Sir, can I speak? Yeah, sure, Yes, sure. please come. Thank you, Honorable Speaker, sir. Oh. Can I stand before you? Hold on. Gangotri ji, he's not speaker. He's our member. Please. Yes.
So I strongly condemn this एक breach मिनट, of parliamentary yes proceedings yes, by एक Saurav मिनट, मैं multiple times. माननीय सर एक मिनट है, मेरा नेटवर्क एक मिनट है, मेरा नेटवर्क जा रहा है। ओके सर आपका कैमरा बंद कर लीजिए जी। माननीय सदस्य सौरव, आप कृपया करके संसदीय नियमों का पालन करिए प्लीज, आपसे निवेदन Sir, करते हैं। same sir, same to same. Same to Saurav. Yeah, same Saurav, same. This is not the right way to proceed in the parliament. ओके Same to Saurav. Same. कौन बोल रहा है ये? शांति रखिए, सदन की गरिमा बनाइए। Speaker sir, your voice is breaking a lot. ओके 1 मिनट। सदन की गरिमा बनाए रखिए कृपया करके। माननीय सदस्य सौरभ, आप कृपया करके मर्यादा के अनुसार ये करिए। आप सदस्य है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये आप यहाँ पर जनता, क्योंकि जनता तक मुद्दे पहुंचाने, आप उसके लिए यहाँ पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए, तो अच्छे तरीके से अपना जो एनर्जी है उस विषय पे चर्चा करने के लिए डालेंगे तो अच्छा होगा, तब इस बहस का ये अच्छा फल हमें मिलेगा। तो आपसे यही निवेदन करते हैं हम आखिरी बार, ठीक है? धन्यवाद। कृपया करके अध्यक्ष है यहाँ पर, हम डायरेक्ट कर लेंगे अगर कोई ब्रीच कर रहा है पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को। आखिरी बार, माननीय सदस्य गंगोत्री प्लीज कंटिन्यू। Honorable member Gangotri, please. Okay, let us continue with the proceedings. माननीय सदस्य अंसारी ओसामा। Okay, माननीय सदस्य अंसारी ओसामा, आप बोलेंगे? आपका, हाँ बोलिए। So we think about it, we are required technology for solving. So what we say that we are moving like from sample to design. Like we see in the previous within the institute so that we can design made in India semiconductor device. If you talk about from the artificial intelligence, so like we have like around 10,000 crores in the AI itself, so that we can strengthen our supercomputing thing also, and we have around 10,000 GPUs also, like computer games. So that mostly we talk about the feedback institutes are there. If you see the government institute only. So we are also building those also and that domain also. And the one more thing important is like we have allocated around 6,000 crore rupees for this national quantum missions, which is like specifically hubs which are being created by IIT Bangalore, IIT Bombay also. So basically this budget is like more about like creating indigenous India's quantum computing, which will be the our goal, like the entire goal of the budget, like the Viksit Bharat. ओके, धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। मैं अभी आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जो आपको समय दिया गया था 1 मैं आग्रह करता हूँ आपसे, जो आप लोगों को समय दिया था, जो अभी बोलने वाले हैं 1.30 मिनट्स, उतने ही समय तक आप लोग बोलेंगे। तो हमारे पास समय की मर्यादा, समय कम है, तो प्लीज 1.30 मिनट्स तक ही बोले जो लोग बचे हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य गंगोत्री, ओनली 1.30 minutes you have. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Honorable Speaker, sir.
Today I stand before you to address the pressing concerns regarding the economic survey. Despite the survey listing the challenges like stagnant capital investment, which was stuck at 30% of GDP for 12 years, and the collapse in the net FDI in 2024 to 2025, the government has cut the capital expenditure by a significant amount, both at the central and state levels. And the second concern is the severe concern is the unemployment issues. The youth unemployment is 15%, and less than 25% of the workforce is in regular employment. And when it comes to the PM internship scheme, where only a small fraction of the offers were accepted, and many interns left their jobs. And third concern is that regarding the slow growth rate and the physical consolidation, as finance minister stated that they regarding the reform express, like action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. When we talk about this reform express, I want to highlight this point that the nominal growth has declined significantly from 12% in 2023 to 2024 to 8% in 2025 to 2026. And the slow pace of the physical consolidation at the current rate, it would take 12 years to achieve the FRBM Act, which is the Fiscal Budget Management Act. So I want to put these things forward to the Finance Ministry. Thank you. Yeah, Thank धन्यवाद. you for giving me this opportunity. धन्यवाद माननीय सदस्य। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य शुभांगी कौल अपनी बात सदन के सामने रखें। 1.30 minutes. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I'll start with few lines. ख्यालों के शहर में महल बना लिए थे, जमीन पर ना सही हवा में ही सजा लिए थे, जब बारी आई अमल करने की तो टूट गए, अमल से दूर ख्वाबों के बोझ उठा लिए थे. Sir, I will give you a quick snapshot of the paradoxes that Indian citizens are living every day. Their first kartavya, sir, is about productivity and competitiveness and to accelerate economic growth, whereas the majority of women in the urban setups are not even having high-paying jobs to face, and they plus face multiple barriers at different levels compared to their male counterparts who are also operating at the same setup. Sir, their second kartavya is about aspirations and capacity building, but in contrast, the government has failed miserably in providing supply chains and these support chains for these micro, medium, small enterprises. So their third kartavya is motivated by this principle of inclusivity, which says "Sabka Saath, Sabka Vinash." Sabka Saath, Sabka Vikas, which should be reframed as "Kuch ka hi saath, baki sabka vinash," because 3 lakh plus homeless people in Delhi are still invisible to them. The whole LGBTQAI plus community couldn't find any mention in their budget, but they're having separate schemes. I know what they will come up with. Sir, not only this, the reports are actually showing that expenditure is actually less, and they are declining the utilization. And same goes with PM Awas Yojana, the previous one and the 2.0 both. Sir, there is no roadmap for the census towns who are providing high productivity but are facing weakening service delivery till date. Sir, we are talking so much about metro cities and this rapid transit projects, but there is no bus availability. It remains stagnant. I take my word back. There is no bus availability, but the data remains stagnant. Sir, the report of Niti Aayog itself has said that there is a mismatch and large implementation gap are reported itself, where they have observed inadequate service delivery in urban areas as compared to their needs, which eventually affects Okay, economic please vision conclude. and plan. Yeah, please conclude. So that's it. The basic service like sewage, clean water, electricity, roads, etc. They are facing a huge coordination and direction issues. Thank you, sir. Thank you. On माननीय सदस्य नोएल जुड़े अपनी बात सदन के सामने रखें। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए
यूनियन बजट 2026-27 के की इनिशिएटिव्स को क्लियर एक्सप्लेन करते हुए बजट का समर्थन मैं करना चाहता हूं और फाइनेंस मिनिस्टर पलक गोयल जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं। इस बजट में गवर्नमेंट ने कल्चरल हेरिटेज को इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट का इंजन बनाया है, नॉट जस्ट कंजर्वेशन। ये बजट एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें देश का कल्चरल, स्पिरिचुअल और हेरिटेज साइट्स को डिजिटली डॉक्यूमेंट किया जाएगा, मैप किया जाएगा और विजिटर एंगेजमेंट बढ़ेगा। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशंस में डेवलप करने का प्लान, जिनमें लोथल, रखीगिरी, वैशाली, नालंदा, बादामी, पट्टदकल और अदर्स, जिससे क्यूरेटेड वॉकवेज, इमर्सिव स्टोरी टेलिंग टेक्नोलॉजीज और इंटरप्रिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। टूरिज्म और कल्चरल सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए पायलट स्कीम टू अपस्किल 10,000 टूरिस्ट गाइड्स अक्रॉस 20 आइकॉनिक साइट्स लॉन्च करने की भी बात की गई है, जो IIM बैक्ड 12 वीक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेट होगा। बजट ने बुद्धिस्ट सर्किट्स इन नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी दी है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज और पिलग्रिमेज अम्यूनिटीज को डेवलप करके स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक नए डायमेंशन पर ले जाने की योजना प्रपोज की गई है। इन सब के अलावा टूरिज्म इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी को सेटअप किया जाएगा बाय अपग्रेडिंग द नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। Sir, to conclude, Honorable Speaker, sir, बजट 2026-27 से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल मिला है, जहां हम अपनी एंशिएंट हेरिटेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क्स के थ्रू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, यूथ्स को जॉब देंगे और लोकल इकोनॉमीज को एम्पावर करेंगे। ये हेरिटेज इकोनॉमी है, नॉट जस्ट हेरिटेज प्रोटेक्शन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, संस्कृति कृपया अपनी बात सदन में। थैंक यू सो मच स्पीकर सर। तो मैं इस बजट 2026 के बजट को पूरी सहमति मेरी है इस बजट के साथ, क्योंकि ये केवल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये भारत का भविष्य का रोड मैप है। और जब ग्लोबल इकोनॉमी इन्फ्लेशन देख रही थी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस देख रही थी, वॉर टेंशंस देख रही थी, सप्लाई चेन क्राइसिस हो चुका था, तब इंडिया ने स्टेबिलिटी और ग्रोथ को चूज किया है और आज भी 7.8% पे जीडीपी बरकरार रखी है। आज भी इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है और ये बजट उसी ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाता है। इस बजट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है फिस्कल प्रूडेंस, जो कि बोला गया है 5.1% बोरिंग मेंटेन की जाएगी, कम करने की फिस्कल प्रूडेंस बोरिंग कम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स कम जा चुके हैं। और इसका परिणाम स्वरूप हमें मिला भी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 37.6 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। और इस बजट का सरकार ने का जो क्लियर रोड मैप है फिजिकल डेफिसिट को ग्रेजुअली कम करने का है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रोड्स, रेलवेज, डिजिटल कनेक्टिविटी पर करने का है। और किसानों के लिए इरिगेशन एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, रूरल क्रेडिट सपोर्ट और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर फोकस किया गया है। फार्मर को सिर्फ सब्सिडी नहीं, प्रोडक्टिविटी और मार्केट एसेस भी दिया गया है। एमएसएमईज के लिए भी इनहांस किया गया है क्रेडिट गारंटी, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस और डिजिटल फॉर्मुलेशन, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाई जाए। एमएसएमईज का दिखा भी है हमें एज पर द रिजल्ट्स व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर आल्सो। और मिडिल क्लास के लिए भी काम किया गया है, दैट इज टैक्स रैशनलाइजेशन, कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन और इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेशन से रिलीफ और स्टेबिलिटी दोनों इंश्योर की गई है, जैसा कि आरबीआई में रेपो रेट कम करवा दिया गया। इंस्टीट्यूशंस को डिजिटाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी के थ्रू एम्पावर ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया गया और स्ट्रैटेजिकली रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में भी इन्वेस्ट किया गया है, ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम की जा सके और इंडिया को ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन तक सिक्योर किया जा सके। इसीलिए मैं गर्व के साथ इस बजट के साथ हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आग्रह करता हूँ माननीय स्पीकर महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले मैं कल सदन में हुए हंगामे पर अपनी पार्टी की ओर से खेद व्यक्त करता हूं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि सदन की मर्यादा का पूरा सम्मान रखा जाएगा। अब मैं बजट पर अपनी बात रखता हूं। ये बजट देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने पर केंद्रित करता है। हमारा लक्ष्य है रोजगार बढ़ाना, कृषि को मजबूत करना और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। हम सब मिलकर सकारात्मक चर्चा करें और देश हित को इस सत्र में सफल बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।
माननीय सदस्यगण, इस 3 दिवसीय बजट सत्र पे चर्चा पूर्ण हो चुकी है। माननीय सदस्य, इस 3 दिवसीय बजट सत्र पे चर्चा पूर्ण हो चुकी है, and I would like to congratulate each and every member for being an active part of this important discussion on the union budget, as it was presented by our Honorable Finance Minister of India, Ms. Nirmala Sitharaman ji. Now, since this Yuva House Lok Sabha has already completed the discussion on the Union Budget 2026 to 2027, the House will move on to the next item, that is the reply from the Finance Minister over the discussion. The Finance Minister will reply to the discussion, followed by the legislative business, that comes the voting part on the union budget and the passing of union budget. So I request all the honorable members, since we have started the session late today, and it's very much necessary to pass the budget today itself, so the house may run its upcoming sessions on public interest from upcoming upcoming days. So I request on all the honorable members to please assemble when we are taking the budget for consideration, and as the Finance Minister Palak Goyal will reply to the discussion. So I may now ask for the permission of the House to please arrive for the legislative business, that is the voting, since I know all the honorable members are sitting from a quite long time. So we will be having a short house interval. So the house will meet again only for 15 minutes for the legislative business of passing of union budget. So the house will meet again at 11:45 p.m. for the legislative business and passing of the budget. Now the house will take up the next item for today, that is the legislative business. I now request honorable, as the chair has received a notice from the honorable member Gangotri to move a motion. So I kindly request the honorable MP Gangotri to kindly move the motion. Thank you, Speaker Sir. Mr. Speaker Sir, with your kind permission, I beg to move the following cut motion standing in my name, demand number 58/28, relating to the Ministry of Tourism, Ports, Shipping and Waterways, that the demand be reduced by rupees 100. Sir, this is a token cut motion moved to highlight a serious grievances concerning the inadequate central support for coastal tourism, port, infrastructure, and sustainable development in Goa and other coastal regions. The budget 2026 to 2027 allocation for tourism revival and Sagarmala projects remain insufficient to address the post-pandemic challenges, beach pollution, heritage preservation, and modernization of ports like Mormugao. Our fishermen and tourism independent youth continue to face unemployment and livelihood threats due to the delayed funding and poor implementation. Honorable Finance Minister emphasis on Viksit Bharat is welcome, but without enhanced targeted allocation for regions like mine, it remains mere rhetoric. This token cut reduction of rupees 100 is to press for an immediate corrective action, better regional equity, and faster release of funds. I request the government to assure the House accordingly. Thank you, sir. Jai Hind. The cut motion has been moved by Ms. Gangotri. Now the question is that the demand be reduced by rupees 100. All those members in the favor may say aye. 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 Aye.
Aye. All those against may say no. 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 I No. think I think the noes have it, the noes have it, the noes have it, and the motion stands, the cut motion stands negative. Mr. Speaker, sir, Now, yes. I thank the House for passing the demands. The government remains committed to inclusive growth and will address the concerns raised during implementation. Thank you, sir. Thank you. Dhanyawad. The House will now take up the next demand as per the Business Advisory Committee allocation of time and order to remaining demands for grants are now assigned. The question is that demands numbers listed on the business relating to various ministries be granted. All those in the favor may say aye. 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 All those Aye. all those members against may say no. 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 Response No. noted. Response noted. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the demand for grants for ministers and departments stands granted. The House will now take up the appropriation bill for introduction. Mr. Speaker, sir, I beg to move that the appropriation numbers 3 bill 2026 be taken into consideration. This bill provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of India of sums necessary to meet A. the grants made by Parliament for the services of the financial year 2026-27 as voted in the demands of grants. B. the expenditure charged on the Consolidated Fund under Article 112 Clause 3 of the Constitution. The amounts are in line with the demands already granted by this August House. The bill reflects our commitment to fiscal discipline, inclusive growth, and priority sectors like infrastructure, youth employment, and sustainable development. I commend the bill to the House. Dhanyawad. Now the question is that the Finance Bill 2026 be taken into consideration. All those members in the favor may say aye. Aye. Yes. Aye. 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 All those against may say no. 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 No, sir, no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the bill stands passed. Honorable Member Shubhangi Kaul. Mr. Speaker, sir, while the passage is inevitable given the majority, I place on record the need for prompt and equitable disbursement of funds to coastal constituencies like Mormugao in Goa. Tourism, ports, fisheries, and climate resilient infrastructure require accelerated implementation to protect livelihoods. I hope the Honorable Finance Minister will monitor this closely. Thank you, sir. The House has considered the clauses. Now that the question is that the Finance Bill 2026 as amended or considered be passed. All those in the favor may say aye. 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 All those against may say no. Aye. No. Aye. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the finance bill stands passed. Honorable members, with the passage of appropriation bill and the finance bill, the parliamentary approval for the Union Budget 2026-2027 stands complete. The government is authorized to incur the voted expenditure
and give effect to the tax proposal for the financial year 2026-2027. This concludes the financial business for the budget session. The House stands adjourned until 14. The House stands adjourned and set to meet on 14 February 2026. Thank you.